سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے مخدوش عمارتوں کو لاوارث چھوڑ دیا۔ ونس روڈ پر موجود مخدوش عمارتیں خطرے کی علامت بن گئی۔ عمارتوں میں تجارتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے مخدوش عمارتوں کو لاوارث چھوڑ دیا۔ ونس روڈ پر موجود مخدوش عمارتیں خطرے کی علامت بن گئی۔ عمارتوں میں تجارتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ سانحہ لحاظی کے باوجود سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی غفلت کا شکار۔ ضلع جنوبی میں 456 مخدوش عمارتیں شہریوں کے لیے ہائی رسک بن گئیں۔ ان عمارتوں کے زمین بوس نہ کیے جانے پر جانی نقصانات کا اندیشہ بھی بڑھ گیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے مخدوش عمارتوں سے متعلق مؤثر حکمت عملی نہ اپنانے پر شہر کے اہم ترین ضلع جنوبی میں ناخوشگوار واقعات رونما ہونے کے خدشات ہیں۔ کیمرہ مین قمر عابدی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ شہر کے انفراسٹرکچر کی بہتری اور عوامی سہولیات فراہمی کا مسئلہ سٹی 21 کی ایک اور کاوش رنگ لے آئی۔ کے ایم سی نے البیلا چوک پر پیدل چلنے والوں کے لیے بالائی گزرگاہ کو مرمت کے قابل استعمال بنا دیا۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ قومی قوانین کے مطابق مرکزی شاہراہوں پر پیدل چلنے والوں کو سڑک عبور کرنے کے لیے ہر 2 کلومیٹر فاصلے پر پیڈسٹرین برج قائم کرنا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے شہر میں بالائی گزرگاہوں کی تعداد انتہائی کم ہے اور جو موجود ہیں ان کی دیکھ بھال نہ ہونے اور نشہ آور افراد کے فولادی مٹیریل چوری کرنے سے تباہ حالی کا شکار ہیں، جن میں نیشنل روڈ البیلا چوک کی بالائی گزرگاہ بھی شامل ہے، جو فولادی مٹیریل کی مسلسل چوری کے باعث ناقابل استعمال ہو گیا تھا۔ سٹی 21 کی نشاندہی ہوئی تو کے ایم سی انتظامیہ حرکت میں آئی اور برج کی مرمت کر دی گئی، مگر شہریوں کے ذہنوں میں ابھی بھی تحفظات ہیں۔ تو اب آپ کو لوگ اس پہ چلتے پھرتے دکھیں گے بھی۔ اس سے پہلے اس کے اوپر کوئی آتا نہیں تھا کہ جگہ جگہ اس میں گڑھے تھے اور سائڈوں سے اس کی گرلز غائب ہو گئی تھی۔ تو اب جو ہے اچھا وہ گرل پہلے جن لوگوں نے غائب کی وہ اب بھی یہی ڈیرہ زن ہے، وہ یہاں آپ اوپر چل کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو سویا ہوا ملے گا ہیروئن۔ تو میری گزارش ہے کہ جب ہم اتنا بڑا کام کر دیا، اتنا خرچہ کر کے اس کو رینوویٹ کر دیا، تو میری کام سے گزارش ہے کہ ذرا ان پہ بھی نظر کریں، ان کا یہاں سونا بیٹھنا اٹھنا ذرا کسی طور پہ قابو کیا جائے تاکہ یہ آری کی مدد سے اس کو پھر نہ کاٹ سکے۔ عوام کا کہنا تھا کہ برج بحال ہو گیا، مگر شہریوں کی جانب سے اسے استعمال نہ کرنے کی روش برقرار ہے، جسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ انتظامیہ سے یہ گزارش ہے کہ ان چیزوں سے روچیوں سے دور رکھے۔ باقی آپ کو پتہ ہے روزانہ دن کا حادثات وغیرہ، فیملی آتی جاتی ہے، تو یہ پل بنے بڑا بہترین بنے۔ لوگ نے بنایا یہ لوگوں کے لیے سہولت کے لیے، تاکہ لوگوں کو روڈ پار کرنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ جیسا بزرگ بندہ ہوتا ہے جیسا چڑھ نہیں سکتا ہے، اس کے لیے مجبوری ہے وہ روڈ پار کرنے کے لیے ہوتا ہے، مگر عام بندے لیڈیز وغیرہ بچہ یہ نا اکثر میں نے دیکھا نا روڈ پہ جاتے آتے ہیں، اوپر سے بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق کراچی میں سالانہ 600 سے 650 افراد حادثات کا شکار ہوتے ہیں، جس میں پیدل چلنے والوں کی تعداد 28 سے 30% ہے۔ کیمرہ مین آغا رفیق، کیمرہ رضوان احمد، سٹی 21۔ کہ الیکٹرک نے جامع فیڈر کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنی قرار دے دیا۔ الائنس آف آرام باغ ایسوسی ایشن نے فیصلے کو خوشائن قرار دیا۔ صدر آصف گلفام کے مطابق 30% دکانوں کو ریلیف ملا ہے، جبکہ آرام باغ فیڈر کو استثنی ملنے سے مزید بڑا ریلیف حاصل ہوگا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ تاجروں کی کوشش رنگ لے آئیں کہ الیکٹرک کے تعاون سے جامع فیڈر پر لائن لوسز ختم۔ صدر آرام باغ الائنس آف مارکیٹ ایسوسی ایشن آصف گلفام نے کہا کہ جامع قلعت مکمل طور پر لوڈ شیڈنگ سے فری نہیں ہوا، تاہم جامع فیڈر پر لوڈ شیڈنگ ختم ہونے سے 30% دکانوں کو ریلیف ملا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آرام باغ فیڈر پر تاحال لوڈ شیڈنگ جاری ہے، اگر آرام باغ فیڈر کو بھی استثنا دیا جائے تو بڑی تعداد میں تاجروں کو ریلیف مل سکے گا۔ دن رات ہم پریشان ہیں، آج بھی پریشان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جامع فیڈر جو ہے وہ 30% جو ہے مارکیٹیں آتی ہیں، زیادہ تر جو ہے آرام باغ فیڈر میں جو ہے وہ 70% مارکیٹیں آتی ہیں، جو آج بھی پریشان ہیں۔ آصف گلفام نے کہا کہ الیکٹرک کے ساتھ تعاون سے جامع فیڈر پر لائن لوسز ختم کروائے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے میں پیش رفت ممکن ہوئی۔ لوڈ شیڈنگ سے جو ہے ہم آج بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، پہلے کاروبار نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے یہ لوڈ شیڈنگ ہم پہ جو ہے وہ تھوپی جا رہی ہے۔ جو بجلی بل ادا نہیں کر رہا اس کی تو لائٹ ہے، لیکن جو بل ادا کر رہے ہیں اس کی لائٹ نہیں ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ دیگر فیڈرز کو استثنا دے کر انہیں مزید ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے۔ چیئرمین منگوپی ٹاؤن حاجی نواز علی برہوی کو محکمہ واٹر اینڈ سیویج کارپوریشن ضلع غربی اور کماڑی کا کنوینئر مقرر کر دیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے سیوریج کی لائن بچھانے کے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔
जिला गरबी और किमाड़ी में किल्लते आब का दरीना मसला हल के करीब। मंगूपीर टाउन में सीवरेज की नई लाइनें बिछा दी गईं। चेयरमैन मंगूपीर टाउन को चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का कन्वीनियर मुकर्रर कर दिया गया। इनकी जानिब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सीवरेज की लाइन बिछाई जा रही है। नवाज बरोही के मुताबिक इस सीवरेज लाइन की तनसीब से जिला गरबी, वस्ती और मलीर के मुतअद्दिद इलाकों में सीवरेज के निजाम में बेहतरी आएगी। तो यहाँ पे मुख्तलिफ सोसाइटीज है, साइमा है और वाटर बोर्ड मिलकर हम ये काम कर रहे हैं ताकि साइमा का भी मसला हल हो जाए और इलाके का मसला हल हो जाए। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पे जो लीकेजें हैं, तो फोटेजें चल रही हैं, वो लीकेजें पे जो है ना मैंने फोकस किया हुआ है। लीकेजें वो बनवाने के लिए कुछ बन गए हैं और कुछ बनने जा रहे हैं। और इसके अलावा एक मेजर काम आया था, 12 कोटों का पानी का मसला था, जो पानी लाइन कट चुका था नया कैनाल बनने की वजह से, तो उनको भी मैंने बाल करा के उनकी पानी को जो है ना बाल कर दिया, लोगों को पानी पहुंच गया। वाइस चेयरमैन मंगूपीर टाउन राना आरिफ का कहना था कि नकासी आब के निजाम की बेहतरी के साथ फराहमी आब के कई अमूर भी अंजाम देने के लिए नवाज बरोही ने कमर कस रखी है। अवाम को फराहमी और नकासी आब के मसाइल से छुटकारा मिल जाएगा। ये दीगर इलाके जो है साथ में, इनको भी फायदा हो रहा है क्योंकि ये लाइन वो लाइन है जिसमें यहाँ से इनका ड्रेनेज सिस्टम इसी लाइन से जा रहा है। इसके साथ ही जैसा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के साथ और मंगोपीर के साथ गडाप टाउन जो बॉर्डर पे आ रहे हैं, उनके गोठों के पानी के मसाइल थे, उसको भी साथ साथ चेयरमैन साहब देख रहे हैं। आवाम की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए उनको भी मसाइल हल करने की कोशिश। जिला गरबी और किमाड़ी में नई हब केनाल से इजाफी पानी फराहम किया जाएगा। कैमरामैन आगा रफीक के हमराह रिजवान अहमद, सिटी 21। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि गैर कानूनी केबल नेटवर्क्स के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का फौरी आगाज़ किया जाए। मुतवक्के बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र शहरियों को परेशानी से बचाने के लिए फौरी हंगामी इक़दाम उठाए जाएँ। अंदरून गलियों की मरम्मत के बाद सड़कों को बाकायदा तहरीरी तौर पर मुतल्लिका टाउन इंतज़ामिया के हवाले किया जाएगा। गैर कानूनी रोड कटिंग की रोकथाम के लिए सख्त निगरानी की ज़रूरत है। मेयर कराची ने तमाम बड़े तरक्याती मनसूबे 6 माह में मुकम्मल करने के अहकाम दे दिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत महकमा इंजीनियरिंग का एक इजलास हुआ, जिसमें शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए अहम फैसले किए गए। इस मौका पर म्यूनसिपल कमिश्नर KMC SM अफजल जैदी, मुशीर मालियात गुलजार अबड़ो, डायरेक्टर जनरल टेक्निकल सर्विसेज तारिक मुगल भी मौजूद थे। मुल्क भर में मुख्तसर और तवील मुद्दती मनसूबों पर काम तेज़ी से जारी। इसी सिलसिले में कराची कैंट स्टेशन पर तरक्याती काम जारी हैं। रंगो रोगन दीवारों की सजावट के साथ साथ मुसाफिरों की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक स्टेयर्स भी लगा दी गई हैं। कराची कैंट स्टेशन पर कुल 12 इलेक्ट्रिक स्टेयर्स नस्ब की जाएंगी, जिसमें से 4 ऑपरेशनल कर दी गई हैं। शहर कायद पर मानसून के तगड़े स्पेल की दस्तक। गुलशन मेमार में रिमझिम से बाराने रहमत की शुरुआत। मज़ाफ़ाती इलाकों सुरजानी टाउन, न्यू कराची, बहरिया टाउन में बारिश। महकमा मौसमियात की 22 अगस्त तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग, नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। सिंध हुकूमत का विजन ग्रीन एनर्जी, आवाम के लिए सस्ती बिजली। कराची में 3 रोज़ा सोलर एक्सपो इख्तिताम पजीर। 10 ममालिक के 250 से ज़ायद कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। वज़ीर तवानाई सिंध नाज़िर हुसैन शाह ने खुसूसी शिरकत की। कहा, ऐसे मनसूबों से बहुत मालूमात मिलती है और इस तरह की जो तकरीबात हैं उससे बहुत ज़्यादा मालूमात मिलती हैं। मिसाल के तौर पर आज जब मैंने भी यहाँ पे विज़िट किया तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो सिंध गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है और हम लोग करना चाह रहे हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स तो वो हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई गई जिससे हमारा बहुत आसानी से मसला हल होगा। मिसाल के तौर पर जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है कि पुअरेस्ट टू पुअर को सस्ती बिजली मिले और मुफ्त बिजली दी जाए, हमारा एक विजन है। ग्रीन एनर्जी पे जाएं और EV बाइक्स, EV गाड़ियाँ, सोलराइजेशन की हो रही है, विंड की बात हो रही है, हाइब्रिड सोलर पार्क्स की बात हो रही है। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करें। स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते में मस्बत जोन में रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1108 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1,46,491 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 162 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 42 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंदी की सफर पर गामजन। सरमाकारों के मुतहर्रिक होने पर कारोबार मुस्बत जोन में दाखिल। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1108 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स एक हफ्ते में 0.76% इजाफे से 1,46,491 की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,47,976 और कम तरीन सतह 1,45,258 रही।
स्टॉक माहिरीन का कहना है कि मूडीज के पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करने से सरमायाकार मुतहर्रिक रहे। और हम इस पूरे वीक में देखें तो मार्केट के अंदर जो पॉजिटिविटी थी वो ज़्यादा थी पूरे वीक में, ऑल्दो शायद एक या दो दफ़ा मार्केट में ऐसा था कि मार्केट माइनस में बंद हुई। ओवरऑल जो मार्केट में सिचुएशन थी वो काफ़ी बेहतर थी। मार्केट के अंदर ऑयल एंड गैस स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, सीमेंट सेक्टर ने परफॉर्म किया, टेक्सटाइल ने, एनर्जी स्टॉक्स ने, उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल ने। तो ओवरऑल जो मोमेंटम था वो काफ़ी पॉजिटिव था। हर स्टॉक्स का, हर सेक्टर का अलग मल्टीपल है, तो अभी बड़ी गुंजाइश है। प्लस एक रेटिंग एजेंसी आपकी बेहतर हुई है, आप पॉजिटिव से स्टेबल पे आ गए हैं, तो इससे क्या होगा कि जो आपको लोन्स लेने में आसानी हो जाएगी। और फॉरेन पोर्टफोलियो जो बाहर से बैठे हुए लोग मैनेजर्स और फंड मैनेजर्स वो देखेंगे, क्योंकि लग रहा है कि हम इमर्जिंग मार्केट में आ जाएंगे क्योंकि हमारी लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई है। अगर इमर्जिंग मार्केट में आ जाते हैं तो एक नया स्टेप होगा मार्केट के लिए, और उसमें देखेंगे कि फॉरेन इन्फ्लोज आना शुरू हो जाएंगे पोर्टफोलियो, और जिससे हमें डॉलर्स के रिजर्व्स के इश्यूज आते हैं वो मेरे ख्याल में खत्म हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 162 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 42 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 127 अरब रुपए बढ़कर 17,469 अरब रुपए पर पहुंच गई। अशरफ खान, सिटी 21। हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में बेहतरी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 40 पैसे सस्ता होकर 282 रुपये 6 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 35 पैसे सस्ता होकर 284 रुपये 55 पैसे तक गिर गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में बेहतरी। तरसीलात ज़र और बरामदात की मद में डॉलर आने से रुपए पर प्रेशर कम हो गया। इंटरबैंक में एक हफ्ते में अमेरिकी डॉलर 40 पैसे सस्ता होकर डॉलर 282 रुपये 40 पैसे से कम होकर 282 रुपये 6 पैसे तक गिर गया। ओपन मार्केट में एक हफ्ते में डॉलर 35 पैसे सस्ता होकर 282 रुपये 6 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर एक हफ्ते में 35 पैसे सस्ता होकर 284 रुपये 55 पैसे का हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क कम होकर 2 रुपये 49 पैसे रह गया। हफ्ते में ओपन मार्केट में यूरो 66 पैसे महंगा होकर 332 रुपये 31 पैसे और बरतानी पाउंड 2 रुपये 18 पैसे महंगा होकर 385 रुपये 36 पैसे का हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में यूएई दिरहम 10 पैसे कमी से 77 रुपये 45 पैसे और सऊदी रियाल 15 पैसे कमी से 75 रुपये 70 पैसे का हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर 1 करोड़ 10 लाख डॉलर इजाफे से 14 अरब 24 करोड़ डॉलर पर पहुँच गए। बादल हो या बारिश, अब सोलर पैनल काम करता रहेगा। चीनी टेक्नोलॉजी के साथ जदीद पैनल मुतारिफ सरबराह लॉन्जी टेक्नोलॉजी मुबश्शिर शेख कहते हैं कि सोलर पैनल पर साया आ जाए तो वो काम नहीं करता। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी है जो बादल में भी काम करेगी। कीमत इंतहाई मुनासिब, आम आदमी के लिए ख़रीदना भी आसान। इसमें जो इन्होंने अभी हाइमोटेन लॉन्च किया, ये एंटी शेडिंग पॉलिसी वो है प्लेट्स है। इसका मकसद ये होता है कि जब बादल आते हैं तो अमूमन कुछ प्लेट के ऊपर साया आ जाता है, साया आने की वजह से प्लेट ऑफ हो जाती है। तो जो हाइमोटेन की टेक्नोलॉजी है उसमें जितना शेड आएगा उतनी ही प्लेट ऑफ होगी, बाकी वो अपनी एफिशिएंसी के साथ चलती रहेगी। कुछ हमने डेमो वगैरह यहाँ किए हैं और दिखाए हैं लोगों को उसका तरीका कि किस तरीके से इसका शेड होता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी आ रही है। शदीद गर्मी भी शहर कायद के वासियों को नाश्ते से न रोक सके। हलवा पूरी, पराठे और चिकन चीज़ पराठे शहरियों की पहली पसंद बन गए। बंस रोड की फूड स्ट्रीट पर सुबह से ही शहरियों का रश रहा। कोई गर्मा गर्म पराठों से मज़े लेता दिखाई दिया तो कोई हलवा पूरी खाता रहा। इतवार की सुबह होते ही बंस रोड की फूड स्ट्रीट शहरियों से भर गई। कोई पराठों पर हाथ साफ करता नजर आया तो कोई हलवा पूरी और चिकन चीज पराठे खाता दिखाई दिया। नाश्ते के शौकीन शहरी कहते हैं कि छुट्टी वाले दिन बस मज़ा तब आता है जब फैमिली के साथ बाहर नाश्ता किया जाए। हलवा पूरी यहाँ की खास डिश है, इसलिए हम अक्सर यहाँ आते हैं। हर संडे हम लोग आते हैं, यहाँ का नाश्ता पूरी करते हैं। बहुत अच्छे है, हर चीज़ अच्छी है। चीज़ पराठा, हलवा पूरी, पराठा, चाय, बहुत अच्छे मजे के बच्चे। अंडा पराठा और चीज़ पराठा, हलवा पूरी, चाय। खवातीन कहती हैं कि छुट्टी है तो घर में किचन से जान छूटती है। बाहर का माहौल अच्छा लगता है, बच्चे भी खुश होते हैं। छुट्टी तो मस्ट है ना हाउस वाइफ के लिए, और वैसे भी मेरा मानना तो यही है कि जितनी भी छुट्टी आपको मिले ना वो आप इंजॉय करें, बाहर निकले। घर में रहने का तो रोज का काम है ना। होटलों पर रश बढ़ने से दुकानदार भी खुश नजर आए। कहते हैं कि नाश्ते की तैयारी सुबह सवेरे ही शुरू कर देते हैं ताकि आने वाले ग्राहकों को बर वक्त खिदमत दी जा सके। हलवा पूरी होती है, कचौरी होती है, पराठे होते हैं। बाकी हमारा वायरल चल रहा है मलाई बूटी पराठा, वो बड़ा फेमस है हमारा। और बाकी कचौरी भी अच्छी है, चने आलू की तरकारी, अचार, रायता, पता नहीं क्या क्या इतनी चीज़ें होती हैं, हम तो खुद यकीन करें मेन्यू याद ही नहीं रख पाते। बाकी पराठे हमारे पास बहुत स्पेशल चलते हैं, लोग आते हैं दूर दूर से आते हैं।
छुट्टी का दिन, गरम गरम नाश्ता और खुशगवार माहौल। शहरियों ने मजे लिए और दुकानदारों की भी चांदी हो गई। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एशिया कप और सैमुल्की सीरीज से आउट। 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान, फखर जमान, शाहीन शाह, हारिस रऊफ, साइम अयूब, खुशदिल शाह स्क्वाड का हिस्सा। हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस भी शामिल हैं। इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, साहबजादा फरहान, सलमान मिर्ज़ा और सुफियान मुकीम भी टीम में शामिल हैं।